Hello guys, welcome to my channel where we explore the concept of AI, machine learning, deep learning and robotics for data scientists. Today we are going to discuss the concept of machine learning, means you can say it's introduction to machine learning. Also we'll discuss the concept of deep learning, how machine learning and deep learning is correlated. तो आज हम लोगों का क्या एजेंडा है, today's agenda. Number one, introduce machine learning. Also, we'll discuss parallelly the concept of machine learning versus deep learning, means how it is related. Okay, because as we know, deep learning is the subset of machine learning. So if it is subset, as per our previous video, we discuss a lot on it. तो हम लोगों ने देखे हैं कि deep learning is the subset of machine learning. So now we need to understand the machine learning in detail to make more clear, to make clear concept before start deep learning. Okay, so machine learning and introduction to machine learning. Now number one, that is, what is machine learning? So in machine learning, first of all, there are two types of machine learning. Means we need to learn machine learning or the all machine learning approaches. Any kind of machine learning approaches, the algorithms are categorized into two part. One is supervised machine learning and number two is unsupervised machine learning. So supervised machine learning and unsupervised machine learning, in these two category we need to understand the whole concept, means any kind of algorithm, कोई भी algorithm आप लिख रहे हो in machine learning में to implement कोई भी machine learning algorithm implement करने के लिए या तो आप सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में लिख रहे हो या फिर अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में वो लिख रहे हो. बट व्हाट एग्जैक्टली दिस टू क्या है, ये दोनों हम लोग देखेंगे इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप इन फ्यूचर. तो टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को शुरू करना है नंबर वन, दैट इज सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग. सो ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग होता क्या है? लेट्स से we can consider a data set, means any supervised machine learning data set मतलब जो डेटा को लेके हमको काम करना है. So in this data set having two kind of variables. Number one is independent features or variables and dependent features or variables, right? Now what exactly this independent and dependent features? For that we need to go through a simple example. Say I'm taking one example of very simple two variable based example is age and let's say weight. Okay, so समझ लीजिए, लेट्स कंसिडर, समझ लीजिए कि मेरे पास कुछ एज है, वन मीन्स से 10, 20, 30, 35, 40, 45 कुछ एजेस है और कुछ वेट भी इस हिसाब से मेरे पास है, से 30, 40, then 49, then
60, then 65, this kinds of age. Now say what we are getting over here, मुझे हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है कि किसी का भी एज के साथ उसका वेट का एक रिलेशन है। तो ये जो रिलेशन हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे या फिर जो भी रिलेशन हम लोग यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं बिटवीन द एज एंड वेट, उसमें एक चीज एक कॉन्सेप्ट कॉमन आ रहा है कि एज के ऊपर वेट डिपेंडेंट है। एज इज इंडिपेंडेंट, हियर एज इज इंडिपेंडेंट फीचर्स बट वेट इज बेस्ड ऑन एज। किसी का एज 10 और वेट 65, तो मुझे पता चला यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है। किसी का एज 45, एज और वेट 10 kg, मतलब कुछ गड़बड़ी है। किसी का एज 30, वेट 49, 50, 60, सो इट्स कंसिडरेबल। तो द कॉन्सेप्ट इज व्हाट कि एज के हिसाब से हम लोग वेट का वैल्यू को डिपेंड मतलब कुछ प्रेडिक्ट कर पाते हैं और वो प्रेडिक्शन राइट या रॉन्ग समझ पाते हैं। सो दैट इज व्हाई weight is dependent on age and that is why it is dependent feature. Clear? Hope it is much clear with this example. So ये होता है हम लोगों का सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। नाउ ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, मशीन लर्निंग कहाँ पे आता है यहाँ पे कि हम लोग ये एज को एज इनपुट यूज करेंगे, फिर एक मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम लोग उससे वेट को पता करेंगे। नाउ हमारे पास ऑलरेडी कुछ एज वैल्यू दिया हुआ है, मुझे वेट भी पता है, तो मैं एक मॉडल जिसको हम लोग नॉर्मली टेक्निकल नेम इज हाइपोथेसिस बोलते हैं। ये वेट होने के बाद मतलब ये वेट जब मेरा मॉडल से मैं इस एज का इनपुट दे के वेट और उस हिसाब से क्या वेट हो रहा है उसका भी एक मतलब मेरे पास डेटा ऑलरेडी है, रियल लाइफ डेटा, वो डेटा के साथ एक मैच करके उसमें डेटा टोटल डेटा को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करके, एक होता है ट्रेन और दूसरा होता है टेस्ट। और दैट मीन्स जो डेटा मुझे कंप्लीट दिया गया एज और वेट का, जैसे कि यहाँ पे एक डेटा आपको दिया गया, इस डेटा के बेसिस में मुझे जो मतलब जो भी मुझे ट्रेनिंग डेटा के हिसाब से यूज करना है, मतलब जो मॉडल मैं बना रहा हूँ उस मॉडल में ये डेटा फिट करके मुझे चेक करना है कि हाँ जो एज के हिसाब से जो वेट निकलना चाहिए या फिर रियलिटी में है वैसा ही अगर निकल रहा है तो मेरा मेरा ये मॉडल सही काम कर रहा है। फिर उसी डेटा का एक पार्ट, समझ लीजिए इतना पार्ट मैं ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और इतना पार्ट मैं टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ कि जबकि मुझे पता है कि 40 एज में 60, 45 में 65, तो इसी डेटा को मैं टेस्ट के लिए एक चेक करके देख रहा हूँ कि हाँ अप्रॉक्स ऐसा ही वैल्यू आ रहा है। तो मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ ये जो डेटा मैं काम कर रहा था वो ये टेस्टिंग वैल्यू के ऊपर भी काम कर रहा है, क्योंकि मुझे टेस्ट वैल्यू ऑलमोस्ट पता है। तो इस हिसाब से मैं एक मॉडल क्रिएट करूंगा। उसके बाद क्या होगा, थोड़ा बहुत जो एक्यूरेसी का प्रॉब्लम होगा वो भी फिर टेस्ट करके फिर नए से मॉडल में थोड़ा चेंजेस लाके वैल्यू को थोड़ा चेंज करके करेंगे। ऐसे करके हम लोग जब कर पाएंगे एक मॉडल बिल्ड कर पाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू डेटा इसमें डालूंगा तो मुझे प्रेडिक्ट करके ऑलमोस्ट करेक्ट वेट प्रेडिक्शन एज अ प्रेडिक्शन दिया जाएगा। न्यू डेटा एज एज डाला जाएगा तो मुझे प्रेडिक्टेड वैल्यू में वेट दिखाया जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 99%, 98% एक्यूरेट रिजल्ट होगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में क्या हो रहा है, फिर से एक बार देख लेते हैं कि जो आउटपुट, अगर इसको मैं आउटपुट वैल्यू
मान के चलो, क्योंकि एज के हिसाब से ही मेरा आउटपुट निकल रहा है वेट, तो ये आउटपुट वैल्यू भी यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज मेंशन्ड, द आउटपुट वैल्यू इज मेंशन्ड, and that basis on that output value I can build a model and train the model and then test the model, and then I can use it to predict based on the input that is independent variable to predict the output that is dependent variable. This is the concept. In short, this is the concept of supervised machine learning. Now in this supervised machine learning, one more concept we have, that is uh, the type of supervised machine learning. तो supervised machine learning को हम लोगों ने दो ग्रुप में डिवाइड किया है फिर से. वन इज क्लासिफिकेशन and another one is regression. Okay, so classification and regression, what exactly the use of these two type of supervised machine learning based on data type, based on data. क्लासिफिकेशन मशीन लर्निंग हम लोग यूज करते हैं जहां पे एक एग्जांपल के हिसाब से अगर समझ लेते हैं कि समझ लीजिए नंबर वन क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन यूज होता है कैटेगरिकल डेटा के लिए. अब कैटेगरिकल डेटा और क्या है ये तो हम लोग डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है किसी वीडियो में, तो हम लोग और भी डिटेल में समझेंगे आगे जाके ड्यूरिंग द डिटेल डिस्कशन ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स. तो कैटेगरिकल डेटा होता है जो काउंटेबल होता है. जैसे कि मेरे पास एक कुछ बॉल्स है, 10 बॉल, 10.5 बॉल्स आप नहीं काउंट कर पाओगे, मतलब ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा. अगर आपके पास 10 बॉल दिया गया तो 10 बॉल ही वहां पे रहेगा. या तो 11 बॉल हो सकता है या फिर 9 बॉल्स हो सकता है, लेकिन 9.5, 9.8, 10.1 बॉल्स नहीं हो सकता है. ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं जहां पे एग्जैक्टली काउंटेबल डेटा होता है. तो और भी डिटेल में कैटेगरिकल डेटा कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे. तो बाय द वे, तो ये क्लासिफिकेशन एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं से सेल्फ स्टडी in our tuition, in our play, in our, and finally result. Now आप देखिए स्टूडेंट्स का सेल्फ स्टडी एक वैल्यू कुछ दिया गया, कितना टाइम के लिए वो ट्यूशन जाते हैं, कितना टाइम के लिए वो खेलते हैं, हाउ मच टाइम ही इज यूजिंग पर डे टू प्ले. तो इसके ऊपर इसका पास और फेल कोई एक वैल्यू निकल आता है. अब समझ लीजिए रिजल्ट जो निकल रहा है कुछ स्टूडेंट्स का सेल्फ स्टडी और उसका ट्यूशन टाइम, उसका प्ले टाइम, कुछ स्टूडेंट्स के अब डेटा यहाँ पे कलेक्ट किए हैं, और भी कर सकते हैं. तो सारे डेटा अल्टीमेट पास और फेल में जाएगा. या तो वो स्टूडेंट पास कर रहा है या फिर स्टूडेंट फेल कर रहा है. तो ये जो पास और फेल हो रहा है, दिस इज आइदर और ऑप्शन. मतलब ये जो पार्ट है, this portion, just a minute, I want to change this color.
this is the portion is independent feature, and this is the portion which is dependent feature or output. Okay, so that means what? Key, this data are given and result also given, what is pass or what is means for how many hours self study, tuition and playtime the student is pass or fail. So by this way, by this given features, if we create a model, ML model, then by this data, by this given value, output value, we can understand that the pass or fail option. Now here option, the output option is two, either pass or fail. That means this is called binary classification. तो मतलब बाइनरी क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि आपका इंडिपेंडेंट फीचर कुछ भी रहे, आउटपुट सिर्फ दो होगा, या तो यस और नो, ट्रू और फॉल्स, जीरो और वन, दैट मीन्स बाइनरी क्लासिफिकेशन। और भी एक तरह का क्लासिफिकेशन होता है, दैट इज मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि आप number of output is more than 2, number of output features more than 2, like not pass and fail, pass, fail and something or something more. Okay, so if there are 3 or more data is available in output, in this case, but number of features are fixed but more than 2, then that is multi-class classification, but that is only for categorical data. So for categorical data we use classification model. Okay, so another one kind of supervised machine learning that we said, that is regression. So number 2 is regression type. रिग्रेशन में क्या होता है कि समझ लीजिए सेम कॉन्सेप्ट की इंडिपेंडेंट फीचर्स एंड डिपेंडेंट फीचर्स। एज एग्जांपल हाउस, हाउस साइज, हाउस location, house price. Now कुछ भी हाउस साइज दिया गया, हाउस का लोकेशन दिया गया, हाउस का प्राइस दिया गया, ऐसे कुछ डेटा आपको दिया गया। Now you can easily make a graphical representation of it like this way कि मेरे पास हाउस का साइज है और यहाँ पे प्राइस है, तो साइज के हिसाब से प्राइस को अगर मैं ऐसे डालते जाऊं तो मेरे पास एक लाइन ड्रॉ किया क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक कॉमन लाइन ड्रॉ हो सकता है दोनों के बीचों बीच, जहां से ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स का एक मिनिमम डिस्टेंस पकड़ते हुए एक कॉमन लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, एंड दैट इज द predicted line. We will discuss in detail in this in further video. मतलब जितना भी हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल के डिस्कस करेंगे वहाँ पे ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा। दिस इज जस्ट ओवरव्यू। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग को एक प्रेडिक्टेड आउटपुट का एक लाइन निकल आता है, इसी को बोला जाता है रिग्रेशन। ठीक है, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वैल्यू, देखिए एक कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हाउस प्राइस, यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि प्राइस जो होता है, समझ लीजिए 1.25 करोड़, कोई बोल सकता है 1.05 करोड़, कोई बोल सकता है 2.067 करोड़।
तो एक चीज समझ लीजिए, 1 2 2 3 देयर इज नो स्पेसिफिक काउंटेबल वैल्यू, देयर इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू। या तो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन कंटिन्यूअस चेंजेबल वैल्यू। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि रिग्रेशन जो होता है वो होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल के कंटिन्यूअस डेटा के लिए। जैसे कि हाइट 1 फीट 2 फीट ऐसा नहीं होता है, 1 फीट के बाद 1.1, कोई बोल दे 1.001, कोई बोल दे 1.116, कुछ भी हो सकता है। तो छोटा छोटा जितना भी आप फ्रैक्शन में जाओगे उसके बाद और भी फ्रैक्शन आ सकता है इसमें। तो कंटिन्यूअस वैल्यू उसे कहा जाता है, डिटेल में हम लोग समझेंगे आगे जाके। तो ये कंटिन्यूअस वैल्यू के लिए जो supervised learning models होता है, that those are the part of regression model। okay, ये हो गया आपका सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का दो पार्ट, वन इज क्लासिफिकेशन एंड द वन इज रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन फॉर कैटेगरिकल डेटा, रिग्रेशन फॉर कंटिन्यूअस डेटा। ओके, नाउ आफ्टर दैट हम लोगों को कुछ एल्गोरिदम, एज इट इज इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग, कुछ एल्गोरिदम के नाम हम लोगों को समझना है कि क्या क्या एल्गोरिदम, बार बार एल्गोरिदम 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 आता है यहाँ पे। तो व्हाट एग्जैक्टली दिस एल्गोरिदम हियर? So supervised machine learning algos, एक हुआ आपका क्लासिफिकेशन, दूसरा हुआ आपका रिग्रेशन जो हमने अभी देखा। तो क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या आता है? तो क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या आता है, क्लासिफिकेशन में समझ लीजिए जैसे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन, नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, क्लासिफिकेशन के अंदर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, फिर डिसीजन ट्री classification model, then a random forest classification model, then support vector machine, और ये सारे कुछ अगले 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर, मीन्स नियर अबाउट विद इन 45 days यू आर गोइंग टू गेट ऑल। ये मतलब मेरा वादा है कि अगले 45 डेज के अंदर आप सब कुछ अपलोडेड मिलेगा यहाँ पे इस चैनल में, सारे वीडियो इन डिटेल और एक एक चीज कवर अप करते हुए, ताकि आपको बहुत डिटेल में इजी तरीके से ये सब कुछ समझ में आए। इसके ऊपर मेरा काम और टोटल वीडियो रेडी हो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कि कहा कि 45 डेज के अंदर आपको सब मिल जाएगा और आप सीख भी लोगे। सपोर्ट वेक्टर मशीन, जिसे हम लोग बोलते हैं SVM, के नियरेस्ट, नेक्स्ट इज स्नैप बेस्ड, GBM, XGBoost, okay, Light GBM, then yes sir, Neural, अब ये जो न्यूरल नेटवर्क हो गया ये आ गया डीप लर्निंग के पार्ट। और कोई भी जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, सारे सारे डीप लर्निंग में भी यूज होता है, क्योंकि डीप लर्निंग इज द सबसेट, डीप लर्निंग इज द सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। तो ये कोई भी क्लासिफिकेशन मॉडल आप पकड़ लो वो डीप लर्निंग में भी जाके भी यूज होता है। अब और डीप लर्निंग में कुछ अलग से भी यूज होता है, वो मैं बाद में आ रहा हूँ। अब रिग्रेशन, रिग्रेशन में जैसे कि समझ लीजिए बहुत पॉपुलर एंड वेरी कॉमनली यूज, दैट इज लीनियर
regression, lasso and ridged. Regression, जब आप ऐसे कह सकते हो कि जितना भी क्लासिफिकेशन मॉडल का नाम लिखा गया, थोड़ा बहुत किसी किसी जगह पे नाम चेंज है और एक दो का इधर उधर है, बाकी सारे रिग्रेशन में भी आता है, या फिर रिग्रेशन वाला सारे क्लासिफिकेशन में भी आता है. पॉलिनोमियल रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री सेम, regression, random forest regression, XGBoost to Lightboost, सारे कोई सेम टू सेम, ये भी यहाँ पे भी आता है. तो ये हो गया आपका सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, जो कि डीप लर्निंग में भी यूज होता है. स्पेशली डीप लर्निंग में एक दो आता है तो बाद में बता रहे. तो ये है आपका सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग. और सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का डिफरेंट कैटेगरी और उसका मतलब एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट. आप ऐसे ही अगर आप अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग पकड़ते हो, तो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में क्या है, एक छोटा सा चेंज आ रहा है, जो कि मतलब थोड़ा मशीन लर्निंग का थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट में जा रहा है, जहां पे आउटपुट देयर इज नो output given. First criteria of supervised machine learning is this, कि supervised machine learning में कोई output mentioned नहीं होता है. ओके, कि एक एग्जांपल अगर ले लेते तो समझ में आ जाएगा पहले ही. सॉरी, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, मैं शायद एक बार सुपरवाइज्ड बोल दिया लास्ट में. अनसुपरवाइज्ड, ये अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में क्या एग्जांपल, जैसे कि एज एंड सैलरी, समझ लीजिए दो वेरिएबल है मेरे पास. अब एज के हिसाब से, या फिर और भी एक छोटा सा मैं चेंज कर रहा हूं, एज से भी अच्छा समझ में आएगा, एक्सपीरियंस, experience in year, so number of year of experience. Okay, 5 years of experience, 10 years of experience, 15 years of experience. तो ऐसे कुछ डेटा है. सैलरी भी वहाँ पे उस हिसाब से 91 लाख, 1.5, ठीक है. तो ऐसा कुछ डेटा मेरे पास है. ये जो दो डेटा, एक्सपीरियंस और सैलरी दोनों हैं, अब मेरे पास ये दोनों ही मेरा इनपुट डेटा है, देयर इज नो आउटपुट डेटा. अगर मेरे पास कोई आता है विथ सम एक्सपीरियंस, समझ लीजिए 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो उसका सैलरी क्या होना चाहिए, ठीक है. और सैलरी अगर मतलब ये कौन से कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग एक एक्सपीरियंस सैलरी एक ग्राफ बना लिए. तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ क्लस्टर, हम लोग क्लस्टर इसको बोला जाता है, मतलब इन अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग द मेन पार्ट इज क्लस्टरिंग. हम लोग क्लस्टर क्रिएट करते हैं कि इतना ईयर और इतना साल एक्सपीरियंस में इतना ये सैलरी के साथ ये क्लस्टर बन गया. दूसरा और एक क्लस्टर समझ लीजिए बना लिए. तीसरा और एक क्लस्टर समझ लीजिए बना लिए. ठीक है, हम लोग कोई भी क्लस्टर जो बना लिए, अब समझ लीजिए इस क्लस्टर में मेरा कुछ डेटा है, यहाँ पे भी मेरा कुछ डेटा है, यहाँ पे भी कुछ डेटा इसके अंदर आ गया, मतलब इस क्लस्टर में. तो ये अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में हम लोग जो क्लस्टर यूज करते हैं, इस क्लस्टर के हिसाब से अगर मेरे पास कोई नया डेटा समझ लीजिए आ गया, इस डेटा को हम किस क्लस्टर के सबसे करीब या फिर किस क्लस्टर में इसको दे सकते हैं, वो देखना ही
यहाँ पे और इस हिसाब से हम लोग कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं। और पैटर्न आइडेंटिफाई के बाद ये क्लस्टर बना के हम लोग that we try to fit the new data in under which cluster। तो ये और डिटेल में हम लोग समझेंगे आफ्टर मशीन लर्निंग पार्ट। तो ये हुआ आपका अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। और अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर कुछ स्पेसिफिक एल्गोरिथम्स आते हैं, जैसे के मीन क्लस्टरिंग, DBSCAN। तो these are the concept of overall एक view of machine learning, deep learning, relationship and the machine learning concept कि क्या होता है ये मशीन लर्निंग, कहाँ से शुरू करना पड़ता है। तो शुरू यहाँ से ही करना पड़ता है कि कितना टाइप का है, क्या है, और बेसिकली किस टाइप का डेटा को लेके ये काम करते हैं, और किस कैटेगरी का रियल लाइफ वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ ये सब जुड़ा हुआ है। तो मेरा कोशिश यहाँ पे यही था कि ये सब कवर हो जाए और आपको वेरी इजी इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी में आपको ये समझा पाऊँ कि आप समझने के साथ साथ हाउ व्हाट आर द टेक्निकल टर्म, बिकॉज 90% क्या 100% ऑफ टेक्निकल टर्म्स आर इंग्लिश। तो वो भी आपको समझ में आए कि एक एक टेक्निकल टर्म का क्या मीनिंग है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मतलब फ्रूटफुल रहा होगा। और इफ इट इज प्लीज कमेंट एंड प्लीज मेक मी श्योर दैट कहाँ पे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ताकि मैं उसके ऊपर और डिटेल में जा पाऊँ आगे किसी वीडियो में। सो थैंक यू। आगे हम लोग मशीन लर्निंग का कुछ एल्गोरिथम्स के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और तब तक थैंक यू।